960. Now we can write down it as answer. This call is now being recorded. 1960 every month. कितना माइल कौन है ये? अपर्णा, प्रज्वल, मना कर रखा है ना बेटा माइक ऑन करने के लिए बीच में? Yes, you can note it down. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. If you have done it, no need to reply one by one. Done, done, done. What is this? If you have done it, sit quiet. ठीक है, जब तक आप जो बच्चे कर रहे हैं जब तक थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं इसमें। लुक एट द पेज नंबर 13. अर्लियर वुमेन डिड नॉट go on the boats for fish, but now Jhansi and some other are going on their boats during the day. Things are changing now and their banks help them. They have also got a special bus to take their buckets full of fish. Why don't we start a new fish drying factory? Now होता क्या है देखिए, if they are getting a good catch का मतलब यहाँ पर जो बुक में एक वर्ड यूज किया गया है good catch means when they are getting a good collection of fish in a day. तो सारी की सारी फिश बिकती नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, उनको सुखा देते हैं बच्चों, सुखाकर फिर उनको बेचते हैं। तो सुखाने के लिए उनको क्या चाहिए, they have to start a fish drying factory. अब now the women of Minkar Bank also want to start a factory to dry fish. The panchayat has given them some land for that. They got some land from panchayat. Over the years, they have saved rupees 74,000. So how much money they have collected in these years? That the money is around rupees 74,000 rupees. They find out how much they will need for the factory. Fazla write the things they need to buy to begin. See the table for the cost of each item and number of items they want to buy. Find the total cost. Now turn the page, everybody. Come on the page number 14. Page number 14. Prisha, where's your book, beta? Answer. Okay. Open it on the page number 14. On the top, we have a table. Can you see the table on the top? Page number 14. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Here, sir. they have written some different things which are required to start the factory in a systematic order. And let's try to find out the total cost for this factory. The first thing which they have given is bore well for fresh water. देखिए, water is very much required to start anything, any setup. पानी की जरूरत तो बेटा बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो ये कह रहे हैं कि बोरवेल है, प्राइस ऑफ ईच दैट इज रुपीज 3000. वन की कॉस्ट क्या बताइए इसने, 3000 है. हाउ मच दे रिक्वायर्ड, 1. सेकेंड आइटम, बैम्बू रैक्स फॉर फिश ड्राइंग. बैम्बू रैक्स, बैम्बू की रैक्स जिनके ऊपर रख के वो फिश को ड्राई करेंगे. 1 की कॉस्ट दी हुई है इसके अंदर रुपीज 2000. एंड हाउ मच नंबर ऑफ दे रिक्वायर्ड इज 20. वी विल फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट लेटर. Cement tanks, each cost rupees 1000. And how much they required? They required 4. Tray and knives, rupees 3000 each, and they required 20. And buckets, rupees 75, and they required 20. So let's try to find out the answer. Look at the first one. So sir is writing here. You can simply write down in your book only. Bore well. Okay, I'm not going to write down the complete. I will just write down bore well only. और बोरवेल इनको कितना चाहिए बच्चों, एक कितने का आता है, रुपीज 3000 का, और इनको चाहिए कितना, 1. तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, जो कॉस्ट दी है और जितना उनको चाहिए, तो इसमें भी रुपीज 3000. आप लोग नोट कर लीजिए अपनी बुक में, आप लोग नोट कर लीजिए साथ साथ. लास्ट में आ जाएगा हमारा 3000 रुपीज. सेकेंड है बैम्बू रैक.
Sir, 40,000 rupees. बैम्बू रैक का कितना है, कितने का है? एक है हमारा ₹2000 का, एंड हाउ मच दे रिक्वायर्ड 20. Sir, So it will be 40,000. ₹40,000. Very good. 40,000. 40,000. Okay. The third item is cement tank. I'm simply write down tank. कितने का है? ₹1,000 का है. 4,000. कितने चाहिए? 4,000. 4 चाहिए. The answer is 4. ₹4,000. Next is tray and knife. Tray and knife कितने का है? ₹300. Sir, 1,000. कितना चाहिए? 20. 20,000. 6,000. 6,000. 6,000, sir. Last one is buckets. कितनी है? एक की कॉस्ट क्या है? ₹75. कितना चाहिए इनको? 20. 75 टू होता है बच्चों 150. सो आंसर विल बी 1,500. सबका यही निकला आंसर? Yes, sir. बेटा आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ वेरी ब्लाइंड फैशन. मैं नाम ले रहा हूं: निकिता मेघवाल, भूषण, वेदांत जोशी, खुशवंत, रोमाना खान, अर्शिका, जतिन, अखिलेश, नमन और अंकिता. इन बच्चों ने अभी तक अपने कैमरे ऑन नहीं किए बेटा. If you have any problem, please tell us. Otherwise, we have very clear instructions. Okay. So this is the total cost which is required to start a factory. Now we will try to find out the total for all these. बताइए इसका टोटल कितना निकलेगा अपना? प्लस करके देखते हैं इस पूरे अमाउंट को हम. So the first one is 3,000, second is 40,000, third one is 4,000, next we have 6,000 और लास्ट में हमारे पास 1,500. यही है ना या कुछ और भी है? फर्स्ट है 3,000, then 54,500. 4,000, 6,000. Sir, second का क्या लिखा है? Sir, second. This is 0. This is 0. Here we have 5. 3 plus 4, 7 plus 6, 13 plus 1, 14. 3 plus 4, 7 plus 6, 13 plus 1, 14 आ गया 4, 1 चला गया कैरी ओवर. So it is 54,500. आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है क्या किसी का? Sir, no, sir. 54,500. The answer is 54,500. Total cost to set up the factory. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now the total cost to set up the factory is 54,500 rupees. हमें पता चल गया यहाँ से. अब ये कहता है when fresh fish is dried it becomes 1/3 of its weight. देखिए क्या होता है जब हम किसी चीज को सुखाते हैं बच्चों तो उसका जो वेट है वो 100% कम होता है. जैसे आप देख लीजिए स्टार्टिंग में अपन कोई चीज लाते हैं जो फ्रेश है तो थोड़ा हैवी रहेगी, सूखने के बाद वो क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर कंटेंट था उसका वो उसमें से इवेपोरेट हो गया. इवेपोरेट होने की वजह से जब पानी निकल गया तो चीज सूख के बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है. तो ये फिश की कंडीशन में क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द बुक it says when fish is dried it becomes 1/3 of its weight. जो भी उसका वेट था वो उसकी खाली 1/3 रह जाती है. 1/3 का मतलब अगर 3 kg था तो सिर्फ 1 kg बचेगा. 6 kg था तो सिर्फ 2 kg बचेगा. मतलब 3 की टेबल के अकॉर्डिंग ही उसका वेट हमारा बचेगा. ओके तो देखिए 1/3 का मतलब ये 1/3 आप
अगर किसी भी चीज का अगर हमसे ऑफ लिखता है तो वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई द टोटल वेट बाय द गिवन रेशियो। इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। उन्होंने एक मंथ में कितना केजी फ्रेश फिश को ड्राई करने के बारे में सोचा, 6000 kg। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। देखिए टोटल जो इसने फ्रेश फिश लिए यहाँ पे वो है हमारे पास 6000 kg, ठीक है। इन्होंने सोचा कि अपन टोटल जो फ्रेश फिश है वो लेते हैं 6000 kg, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, सुखाएंगे। चलो हम भी सुखाते हैं साथ साथ, बुक के साथ साथ चलो हम भी सुखाने की कोशिश करते हैं। और बुक में सुखाने के लिए सिर्फ एक ही चीज दे रखी है उसने, और वो चीज क्या है कि इट विल बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट। 1/3 ऑफ इट्स वेट मींस जो टोटल केजी हमारा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टोटल केजी बाय 1/3। सो इट विल बी 6000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 1/3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इट बिकम्स 1/3। लिखा हुआ है ना बुक में क्लियरली, इट बिकम्स 1/3, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई टोटल वेट बाय 1/3। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 6000 1 जा 6000, 6000 1 जा 6000 और डिवाइडेड बाय 3, यानी कि अब यहां पर इनको डिवाइड करना है। तो देखिए बच्चों 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो ऊपर क्या बच गया, 6 तो रह गया 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 डिवाइडेड बाय 1, और डिवाइडेड बाय 1 का कोई मतलब नहीं है, तो फायदा भी हो गया 2000 kg। अगर हम 6000 kg फिश को ड्राई करते हैं तो फाइनली जो हमारे पास कितनी बचेगी, वो 2000 kg। और ये जो 2000 kg है ये कौन सी फिश है बताइए, सूखी हुई है कि फ्रेश है? सूखी हुई। ओके, सो राइट डाउन ड्राइड फिश। Dried fish. ड्राइड फिश इज इक्वल टू 2000 kg। 6000 kg फिश वो लाए थे मार्केट से परचेज करके, उन्होंने उसको सिखाया तो कितना बच गई सूखने के बाद, 2000 kg। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है बच्चों वो ये है कि ये जो खर्चा हमने निकाला था ये खर्चा तो था ही था, लेकिन इसके साथ में जब हम कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री छोटा मोटा सेटअप स्टार्ट करते हैं तो खर्चे और भी होते हैं। अब वो खर्चे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, ये फ्लोरिमा है। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। तो ये कहती हैं कि चलिए 6000 का तो अपन बाद में निकालेंगे, पहले 6 kg के हिसाब से अपन लेके चलते हैं कि अगर वो फ्रेश फिश 6 kg लेके आते तो उनका कितना खर्चा होता। तो हमने निकाल लिया है तो इसको अपन बाद में करेंगे, थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए। वो कहती है आंटी कि 6 kg से स्टार्ट करते हैं। तो अगर फ्रेश फिश है हमारे पास 6 kg इज इक्वल टू 6 kg, तो ड्राई कितना हो जाएगा, ड्राई करने के लिए हमें क्या करना है, 6 kg को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, देखिए 6 1 जा 6 और डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा, Is equal to 2 kg. 2 kg, 2 kg बेटा, नॉट 1 kg, 2 kg है ना। तो ड्राइड फिश हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 2 kg। 2 kg. 2 kg, ओके। नाउ ये कहती है कि फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 मल्टीप्लाइड बाय डैश। अब देखिए यहां पर इसने फ्रेश फिश की और ड्राई फिश की आपको एक टेबल के अंदर कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट क्या कहती है, फ्रेश फिश अगर हम मार्केट से खरीदते तो है 15 रुपीज पर केजी की। देखिए कॉस्ट मिल गई टेबल के अंदर आपको, कॉस्ट मिली, हाँ। और अगर हम उसको ड्राई करके बेचते हैं तो वो किस रेट में बिक रही है, 70 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिक सकती है। वो लेने गए आप तो आपको सिर्फ कितना देना पड़ा, उसका 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से पैसा देना पड़ा। लेकिन जब हम उसे बेचेंगे तो हम किस रेट पे बेच रहे हैं, 70 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग। तो जब हम उसको लेने गए थे तो हमने उसको पैसा दिया 6 और 15 रुपीज। तो देखिए 15 इंटू 6 हो गया हमारा 90। तो जो फर्स्ट ब्लैंक हमारा बुक के अंदर यहाँ पर बच्चे वैकेंट दिखा रखा है इसने, जो फर्स्ट ब्लैंक आ रहा है फ्रेश फिश वाला, इसमें आप इसकी रेट लिख लेंगे एंड दैट इज 15 रुपीज। 6 मल्टीप्लाइड बाय 15, 6 मल्टीप्लाइड बाय 15। आई होप यू हैव रिटन इट। नाउ वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट, अगर 2 kg जो सूखने के पश्चात बची हमारी, ये जो 2 kg बची, इसका हमें पैसा कितना मिलेगा,
इसका पैसा मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी कॉस्ट क्या है 70 रुपीज 70 इज इक्वल टू 140 रुपीज 140. ओके तो यहाँ पर अपना जो आप दोनों ब्लैंक्स भर लीजिए सो वी सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट 2 मल्टीप्लाइड बाय 70 इज इक्वल टू रुपीज 140 आप दोनों के दोनों ब्लैंक्स भर सकते हैं ओके कर लिया सबने Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जतिन Yes, चोट sir. कैसे लगाई भाई आंख में क्या हुआ Yes, जब- sir. क्या चोट कैसे लगाई बेटा आंख पे खेल रहा था जो गिर गया एकदम से बाटी पे. बहुत बढ़िया ऐसा क्या खेल रहा था गुल्ली डंडे. बच गई बेटा आंख नहीं तो मजा आ जाता गुल्ली डंडा खेलने का चलो ओके यस 6 kg अगर हम अब बात आती है कि अगर हम 6 kg को अगर ड्राई करके बेचते तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा देखिए इसने खरीदा कितने में था इसको इसने खरीदा था 90 रुपीज में है ना और बेचा किसने 140 में तो इसका प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो हम तो ये होगा 90 माइनस माइनस 90 इक्वल टू 50 रुपीज करो नीचे करो कितना प्रॉफिट होगा इसका प्रॉफिट 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा इसका बेची इसने फिश 140 पर खरीदी थी इसने 90 रुपीज में तो प्रॉफिट कितना होगा 140 में से हमने 90 को माइनस किया और हमारा प्रॉफिट होगा 50 रुपीज का जो ये 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ये कितनी फिश पर हुआ सिर्फ 6 kg पर ठीक है आगे देखिए बुक क्या कहती है इफ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न अगर 6 kg पर उसको होता है 50 रुपीज का प्रॉफिट तो क्वेश्चन कहता है कि 6000 kg पर कितना होगा तो कितना मल्टीप्लाई हुआ वेट पहले 6 था वो हो गया हमारा 6000 यानी 1000 बढ़ गया तो सेम इसी तरीके से बच्चों हमारा जो प्रॉफिट है 1000 टाइम पे बढ़ जाएगा ओके इसका मतलब हुआ कि 50 मेरा शेयर तो उठा ही नहीं आ रहा 6 kg का जो प्रॉफिट है हमारा 6 kg प्रॉफिट इज इक्वल टू 50 रुपीज सर दिख नहीं रहा ऊपर का. क्या बेटा ऊपर का दिख नहीं रहा है. तो जब 6000 की बात आएगी तो ये हो जाएगा अपना 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और आंसर कितना हो जाएगा हमारा 50,000 रुपीज का प्रॉफिट इसको होना चाहिए 50,000. ठीक है लेकिन जो 50,000 का जो प्रॉफिट होगा बेटा ये सिर्फ प्रॉफिट अभी वो प्रॉफिट है जो हम लोग सपनों में देखते हैं ना क्या बोलते हैं उसको तेग चिल्ली वाले सपने मतलब ये नेट प्रॉफिट नहीं है इसमें बहुत सारी चीजें बच्चों और भी जुड़ी हुई है अब आप पूछेंगे सर सारा तो निकाल लिया बचा हुआ क्या अरे भाई बचा हुआ है वहां पे लेबर भी आती है काम करने के लिए आपको उन फिश को बाहर से खरीद के फैक्ट्री भी लाना पड़ेगा उनको लेके भी जाना पड़ेगा बस वाले को थोड़ी ना मछलियां दोगे तुम उसको तो पैसे देने पड़ेंगे ना है कि नहीं तो उनका भी तो पैसा निकालना है अभी अपने को इसमें से तभी तो नेट प्रॉफिट निकलेगा अपना चलिए नेक्स्ट पेज पे निकलिए सारे के सारे बच्चे प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए सर हाँ, प्लीज बेटा? एक बार रिपीट कर दीजिए लाइट गोल हो गई थी ओके देखिए हमने यहां पर 6 kg फ्रेश फिश से जो प्रॉफिट निकाला था वो निकला था हमारा 50 रुपीज ओके तो जब 6 kg का हमारा 50 रुपीज निकला तो हमें 6000 kg तो 6 और 6000 में वेरिएशन क्या है बच्चों कि ये हमारा 1000 टाइम्स बढ़ गया है पहले 6 था अब हो गया 6000 तो जो प्रॉफिट होगा हमारा 50 रुपीज का ये प्रॉफिट भी 1000 टाइम बढ़ जाएगा तो उसको 1000 टाइम बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 50 रुपीज का जो हमारा प्रॉफिट था ये प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 रुपीज का 50,000 रुपीज का जो देखिए आप बेटा कॉन्सेप्ट को समझो ठीक है ये कैलकुलेशंस में ध्यान मत दो आप लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखिए मैथ्स के अंदर एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए फिफ्थ का मैथ्स इतना इजी नहीं है जितना एक तो पहली बात तो जितना आप लोग करते आएंगे ठीक है 2 ही लेसन है फिफ्थ मैथ्स की बुक के अंदर जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक है लेसन नंबर 1 ठीक है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेसन बता रहा हूं मैं आपको पूरी बुक के एक तो है हमारा लेसन नंबर 1 जो बहुत ज्यादा टफ है थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह की कैलकुलेशन ज्यादा है मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कैलकुलेशंस
को भूल जाओ आप लोग अभी थोड़ी देर के लिए। जो क्वेश्चन करने का हमारा तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए, और मल्टीप्लाई वगैरह आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जहां हमने आंसर निकाला वो किस तरह से मल्टीप्लाई करके और वो उस नंबर को मल्टीप्लाई क्यों किया। अगर आपको ये चीज आ गई एक बार बेटा, तो आप लोग कभी भी लाइफ में इस तरह के कैलकुलेशन फंसोगे नहीं। तो हमने निकाला अभी तक कि 6000 का हमारा आया 50,000 रुपीज का प्रॉफिट। अब ये जो 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है, ये बच्चों वो प्रॉफिट नहीं है जो नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसके अंदर से हमें और भी बहुत सारी चीजें जो निकालनी है। क्या क्या बताया था मैंने? बस का किराया, ठीक है, लेबर भी वहां पर होगी, उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, वो पैसा भी जाएगा। सॉल्ट और यूज होता है फिश को ड्राई करने के लिए, अभी हमने यहाँ पे सॉल्ट की कॉस्ट नहीं लगाई है, वो भी छोड़ रखा है। तो बहुत सारी और भी चीजें जो हमें निकालनी पड़ेगी, पर अभी तक हमें क्या पता चला, अभी तक हमने ये हिसाब लगाया कि अगर 6000 के जो फ्रेश फिश लाके बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 50,000 रुपीज का। ओके, अब देखते हैं कि भैया कितना क्या है। मैडम आ गई है वैसे तो नेक्स्ट क्लास लेने के लिए। दिस इज 5th। हाँ, सो यू वांट टू कंटिन्यू? हाउ मच टाइम यू विल टेक? Okay, kids, listen. I have to close the class right now. Ma'am has come. Okay, now she will be starting your English class. We will do rest of the part in the next class. Okay, page number 15. Bye, बच्चों. Thank you. Madam is going to Thank you, sir, for teaching us. Bye, sir. I won't waste your time. Get ready within the 2 minutes. Okay. Take care, everybody. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. मैम दूसरा लिंक भेजोगी? Now you can. yes. मैडम आ रही है अभी 2 मिनट में। कह रहा है मैडम दूसरा लिंक दीजिए। ओके। मैडम लिंक नहीं भेजेंगी, जैसे आप इस क्लास को ज्वाइन किया था आपने उसी तरीके से ज्वाइन करना है। सेम प्रोसेस। Stop recording. सर इसी में होगी इंग्लिश की क्लास?